آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ یہ وقت 1184 عیسوی ہے۔ یہاں رات کے وقت 3 لوگ کسی کو دفنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لاش ایک عورت کی ہے۔ اچانک وہاں پر ایک عیسائی دستہ نمودار ہوتا ہے جس کی قیادت گوڈفرے نامی شخص کر رہا ہے۔ وہ عیسائی دستہ ان 3 لوگوں کو جو عورت کو دفنا رہے ہوتے ہیں کچھ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کھڑا ایک پادری انہیں کہتا ہے کہ لڑکی کا سر کاٹ کر اسے دفنایا جائے کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں بیلین نامی ایک لوہار دکھایا جاتا ہے جو اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ وہاں پر وہی پادری گوڈفرے کو اس لوہار کے پاس لے کر آتا ہے۔ گوڈفرے کو اپنے گھوڑے کے لیے کچھ سامان بنوانا ہوتا ہے۔ وہاں پر عیسائی پادری گوڈفرے کو بتاتا ہے کہ اس رات جس عورت کو ہم نے دفنایا تھا وہ اسی لوہار کی وائف تھی۔ وہاں پر گوڈفرے بیلین کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، پہلے کسی وجہ سے مجھے تمہیں چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یروشلم کے کسی علاقے کا حاکم ہے۔ وہ بیلین کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، مگر بیلیم انکار کر دیتا ہے۔ گوڈفرے جاتے ہوئے بیلین کو یروشلم کا راستہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کبھی تمہارا ارادہ بنے تو آ جانا۔ گوڈفرے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد پادری بیلین کو کہتا ہے کہ وہ یروشلم چلا جائے اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کا گلا میں نے کاٹ کر اسے دفنایا کیونکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ اس بات پر بیلین کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ پادری کو وہیں پر مار دیتا ہے۔ بیلین پادری کو مارنے کے بعد یروشلم کو بھاگ نکلتا ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیلین گوڈفرے کے پاس پہنچ چکا ہے، مگر وہاں پر جرمن فوج کا ایک دستہ پہنچتا ہے۔ وہ گوڈفرے کو کہتا ہے کہ بیلین کو ہمارے حوالے کرو، اس پر قتل کا الزام ہے، مگر گوڈفرے ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی بات پر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تیر سیدھا گوڈفرے کو لگ جاتا ہے۔ عیسائی ٹیمپلرز گوڈفرے کو پاس ہی ایک شہر میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک گائے نامی شخص سے ہوتی ہے۔ وہ گوڈفرے اور اس کے بیٹے بیرین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہمیں میسینیا کا ایک ہاسپٹل دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوڈفرے پڑا ہے۔ وہاں پر باپ بیٹا دونوں موجود ہوتے ہیں۔ گوڈفرے اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم بادشاہ کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ہمیں ایک بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر گائے اور بیرین موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر گائے اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے بیرین اور اس کے باپ جیسے عیسائیوں کو مار دیا جائے گا۔ گائے کے جانے کے بعد گوڈفرے کا ایک آدمی بیرین کو بتاتا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد گائے بادشاہ بنے گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو چکا ہے۔ بیرین کو اپنے باپ کے پاس لایا جاتا ہے جس کی موت کا وقت اب بالکل قریب ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی تلوار اور انگوٹھی دیتے ہوئے نصیحت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم بادشاہ کی حفاظت کرنا اور اس کا وفادار رہنا۔ اور اب یہاں پر گوڈفرے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیرین پھر سفر کو نکل جاتا ہے۔ اسے بادشاہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔ راستے میں سمندری طوفان کی وجہ سے بیرین کا جہاز ٹوٹ جاتا ہے۔ بیرین کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ساحل سمندر پر ہوتا ہے۔ وہاں پر کسی نے ایک گھوڑا بیرین کے جہاز کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ بیرین جیسے ہی اسے کھولتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ بیرین اس کا پیچھا کرتا ہے مگر وہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے بیرین کو رستے میں پانی نظر آتا ہے۔ بیرین وہاں سے پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر گھوڑے پر جاتی ہے۔ وہ گھوڑا بھی وہیں سے پانی پی رہا ہوتا ہے۔ بیرین اسے پکڑتا ہے مگر وہیں پر 2 مسلمان نمودار ہوتے ہیں۔ وہ بیرین کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہمارا ہے، ہمیں واپس لوٹا دو، مگر بیرین ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران ایک مسلمان مارا جاتا ہے۔ لڑتے لڑتے بیرین دوسرے کو بھی اپنی نوک پر لے لیتا ہے۔ بیرین اس مسلمان کو کہتا ہے کہ مجھے یروشلم لے چلو۔ اب وہ مسلمان اور گھوڑا بیرین کی ملکیت ہوتے ہیں۔ یروشلم پہنچ کر بیرین اس مسلمان کو اس کا گھوڑا بھی دے دیتا ہے اور اسے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مسلمان بیرین کو کہتا ہے کہ میرے عزیز تیری خوبیاں تیرے دشمنوں میں تم سے پہلے پہنچیں گی، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بیرین اب رستے میں جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کی تلوار کو پہچان کر اس کے پاس آتے ہیں
और बेरियन को पूछते हैं कि गॉडफ्रे की तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। वो उन्हें बताता है कि मैं उसका बेटा हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद वो सभी लोग सर झुका लेते हैं क्योंकि वो गॉडफ्रे के गुलाम थे। इसके बाद बेरियन को गॉडफ्रे के घर लेकर जाया जाता है जो कि अब बेरियन का हो चुका है और वहीं पर एक घुड़सवार लड़की पहुंचती है। वो उसे बादशाह की बहन स्वेला का पैगाम पहुंचाती है जिसमें उसे मिलने का कहा गया होता है। अब यहाँ पर बेरियन बादशाह को मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए सिपाही बेरियन को बताता है कि बादशाह ने पिछले 6 सालों से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से अमन मुआहदा किया हुआ है। इसके बाद हमें टाइबेरियस और रेनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि बादशाह के महल के 2 अफसर हैं। टाइबेरियस रेनाल्ड पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि रेनाल्ड ने 2 अरब मुसलमानों को फांसी दी होती है। टाइबेरियस के पास रेनाल्ड के इस जुर्म का गवाह एक मुसलमान होता है जिसकी गवाही मंजूर नहीं की जाती और रेनाल्ड सजा से बच जाता है। इसके बाद वहां पर बेरियन पहुंचता है। बेरियन की मुलाकात टाइबेरियस से होती है। टाइबेरियस उसे बताता है कि रेनाल्ड के इस करतूत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी वक्त भी यरूशलेम पर चढ़ाई कर सकता है। टाइबेरियस उसे यह भी बताता है कि सलाहुद्दीन अयूबी बादशाह के अमन मुआहदे की वजह से रुके हुए हैं। कुछ ईसाई मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं जिसकी वजह से बादशाह बहुत परेशान है। इसके बाद हमें एक खाने की मेज दिखाई जाती है जहां पर बादशाह की बहन स्वेला भी मौजूद होती है। स्वेला का हस्बैंड गाय है। बादशाह की कोई औलाद नहीं है इसलिए उसके मरने के बाद गाय को बादशाहत मिलेगी। खाने की मेज पर गाय जब बेरियन को देखता है तो वो खाने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर एक सिपाही पैगाम लाता है और बेरियन को कहता है कि तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। बेरियन बादशाह से मिलता है। बादशाह उसे बताता है। बादशाह बेरियन को बताता है कि गॉडफ्रे उसका बेहतरीन दोस्त था और मैंने तलवारबाजी भी गॉडफ्रे से ही सीखी थी। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि रेनाल्ड और गाय किसी मुसलमान बस्ती पर हमला करते हैं और सभी को शहीद कर देते हैं। इस खबर के पता चलने के बाद रेनाल्ड गाय से बहस करता है और उसे बताता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अब कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ बादशाह को एक पैगाम पहुंचता है जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हमले की भयानक खबर होती है। इस खबर के बाद बादशाह अपनी फौज को कहता है कि तैयारी पकड़ो और एक पैगाम बेरियन को भी पहुंचाता है कि जल्द अज जल्द केराक किले पर पहुंचो। ये वही किला है जिसका हाकिम रेनाल्ड है जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का हरबल दस्ता केराक पहुंच चुका है। बेरियन इसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है। इनके दरमियान लड़ाई होती है मगर बेरियन हार जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ मुसलमान सिपाही बेरियन को उठाकर मुसलमान कमांडर के खेमा में ले जाते हैं। बेरियन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये मुसलमान कमांडर तो वही है जिसको इसने आज़ाद किया था। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौजें और ईसाई बादशाह की फौज केराक के मुकाम पर आमने सामने पहुंच जाती है। यहाँ पर सलीबी बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से दरख्वास्त करता है कि बराह करम अपनी फौज वापस ले जाएं। रेनाल्ड ने जो कुछ मुसलमानों के साथ किया है उसकी सजा मैं उसे खुद दूंगा और हमारा मुआहदा कायम रहेगा। यह सुनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में रहम आता है और वो अपनी फौजों को वापस जाने का हुक्म देता है और अपने शाही हकीम को भी बादशाह के इलाज के लिए भेजता है। ईसाई बादशाह रेनाल्ड के किले में पहुंचता है। वहां पर वो उसे मारने लगता है तो अचानक बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है। वहां से बादशाह को यरूशलेम ले जाते हैं और बेरियन को भी वहां पर बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर बादशाह बेरियन को कहता है कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो और मेरे मरने के बाद तुम बादशाह बन जाओ और गाय को फांसी दे दी जाए। मगर बेरियन ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसी रात बादशाह की मौत हो जाती है। बादशाह के मरने के बाद उसकी बहन मलका बनती है और गाय बादशाह बन जाता है। गाय बादशाह बनने के फौरन बाद रेनाल्ड को जेल से निकलवाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहन को भी मार दिया जाता है। अब सुल्तान को रोकने वाला कोई न था। अब जंग नागुज़ीर हो चुकी थी। बेरियन गाय को कहता है कि वो शहर के अंदर ही रहे मगर गाय बेरियन की बेइज्जती कर देता है और ऐलान कर देता है कि जंग शहर से बाहर
आमने सामने लड़ी जाएगी। अब मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान खुली जंग शुरू हो जाती है। सुल्तान की फौज इतनी बेजिगरी से लड़ी कि उन्होंने ईसाई फौज को पसपा कर दिया। इसके बाद सुल्तान शहर का मुहासरा कर लेता है। कुछ ही वक्त के बाद किले की दीवारें तोड़ दी जाती हैं। वहां से बेरियन सुल्तान के पास आता है और कहता है कि मैं अपना किला आपके हवाले नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर बूढ़े बच्चे और औरतें हैं। जवाब में सुल्तान बेरियन से कहता है कि आपके तमाम लोगों को ईसाई इलाकों तक बाहिफाजत रिसाई दी जाएगी। ये सुनने के बाद बेरियन बहुत हैरान होता है और कहता है कि जब ईसाइयों ने यरूशलेम को फतह किया था तो उन्होंने तमाम बूढ़े बच्चों और औरतों को कत्ल कर दिया था। तो जवाब में सुल्तान कहते हैं कि शायद इन्हें याद नहीं कि इनका नाम सलाहुद्दीन है। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ते, हमारा लड़ना महज अल्लाह के लिए है और दीन की सलाह के लिए है। यह सुनने के बाद बेरियन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है कि यरूशलेम आपके हवाले हुआ। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।